Namaskar and welcome to this exciting episode of Sathology, debunking mythology. Sathology means science of truth, a study of truth. It is a word coined by me as an antonym of mythology, which is a science of fake lie imagination or study of fake lie imagination. Now, today we have a very, very special guest. We are going to talk about some core concepts of Vedic time calculation and also some other aspects. You have seen this guest many times on our shows now. So without delay, let us welcome Dr. Aparna Dheer Khandelwal. Namaste, Aditya ji. Namaskar, namaskar. So welcome to the show again, and it's very nice to see you. So, Dr. Aparna, before we start off, the linear time cycle, time scale, is not accepted in the Vedic studies generally, because we all use English phrases like the history repeats itself. If the time was linear, how could it repeat? And if you don't learn lessons from it. Now, when we talk about a technical word, samvatsar, which we are going to talk about today. So what is your understanding of the term samvatsar? Yeah, thanks a lot for inviting me again on your show. And if you allow me to share my screen, so that will be nice to start with, I think so. Yeah, sure. Please go ahead. Thank you. Thank you very much. And I must add a little bit to that. So these shows are both in English and Hindi, and Aparna ji is comfortable, is even better than in Hindi because these are Sanskrit terms. And so please don't, because this is also for the Western audience. So we are doing in English. So Aparna ji, if you want to do Hindi English mix also, is good enough for people. Okay. Thank you, Aditya ji. And that will be more comfortable for me as well, because many of our terms are in Sanskrit and I have to pronounce various mantras from the Sanskrit on text only. So talking about the Samvatsar, as you have asked me this question, why we are taking this topic today, because as you all have, maybe you all have remembered that in my previous talk, I talk about whether Vedic Jyotish was existed during the time of Vedas or not. So what we have concluded in our previous talk, that yes, Jyotish was there, but that too in the form of astronomy, Khagol Shastra jise hum kehte hain, as far as it is concerned with the celestial bodies only. So the movements of the celestial bodies depicts various occurrences of time around you, around us. So this is how we came to know that astronomy and astrology both are interconnected to each other, and that's why we have been we are going to drive this all from our various Asian texts, especially the Shatpat Brahman. That subject I have taken here for the presentation. Now, moving with the Samvatsar Vichar, what we have came across, why I am taking this particular thing, because as I have already said that whatever astronomical findings is going around us, वो हमारे लिए कहीं ना कहीं काल को, हमारे सामने जो काल है, किसी भी चीज को जानने के लिए हमें कैसे पता चलेगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो उसको जानने के लिए हमें जिस चीज को हम उसकी अनुभूति कर सकते हैं, वही है काल। और इसीलिए हम इसके बारे में विचार रखते हैं, करना चाह रहे हैं। Now, starting with this particular term, in my previous lecture, I have talked about the Jyotish, and that too from the Vedic times to the later era. Like we have various Jyotish, astronomical or astrological facts in the Vedic text, and then we have the Vedang Kal, जिसको हम वेदांग ज्योतिष के नाम से जानते हैं। और उसके बाद हमारे पास लौकिक ज्योतिष आता है। लौकिक ज्योतिष का कहने का भी तात्पर्य है जिसके अंदर हमारे पास शकुन शास्त्र, रमल शास्त्र, तासिक शास्त्र, प्रश्न शास्त्र, होरा शास्त्र, और जिसको ब्रॉडली हम संहिता, सिद्धांत और होरा के आधार पर उसको विभाजित कर सकते हैं। So you all have come across that much in my
previous talk. Now talking about this particular talk, as I have mentioned here, a text from the Vedanta Jyotish itself. Tasmad idam kal vedanam shastram यो ज्योतिषम वेदः सह वेद यज्ञान। अब इसका कहने का क्या अभिप्राय है? हमने ये बात पिछले भी अपने स्लाइड में ये बात रखी थी कि जो हमारे वैदिक टेक्स्ट है और उसमें भी मुख्यतः जो हमारे ब्राह्मण टेक्स्ट है, दैट इज द शतपथ ब्राह्मण और लेटर अदर टेक्स्ट लाइक तैत्तिरीय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, many other brahmanas are there which are related to various vedas, vedic text, जो कि उसके मेन जो हमारे 4 वैदिक बुक्स हैं जो आप सब जानते ही हैं, वैदिक ग्रंथों को आप जानते हैं, उनसे जो रिलेटेड ब्राह्मण ग्रंथ है, उन ब्राह्मण ग्रंथों में क्योंकि रिचुअल्स की बात की गई है, कर्म कांड की बात की गई है, यज्ञ की बात की गई है, स्पष्ट शब्दों में यदि कहें तो यज्ञ को करने के लिए in accordance to the time, then only we can have the fruitful result. So fruitful and जो हमारा desired result है उसको पाने के लिए जो हमें आगे बढ़ना है, अपने यज्ञ को करना है, क्योंकि यज्ञ से ही, यज्ञ क्यों करना है ये भी एक प्रश्न आता है। यज्ञ इसलिए करना है क्योंकि whatever we have read in the Samhita ग्रंथास, in the Samhita of Vedic literature, उसमें क्या था, हमने सिर्फ स्तुतियां की थी, हमने सिर्फ प्रार्थनाएं की थी, we have done prayers and hymns through various mantras to please our Vedic gods, जो हमारा नेचर हमारे पास आसपास था। लेकिन उनको प्रसन्न करने के लिए सिर्फ मंत्र नहीं, कुछ कर्म क्रियाकलाप भी कहे गए हैं ब्राह्मण ग्रंथों में, उसी को यज्ञ विधि कहते हैं। और वो यज्ञ विधि में हमें डिजायर्ड रिजल्ट तभी मिलता है जब वो हम इन अकॉर्डेंस विद टाइम कहते हैं, और टाइम भी कैसा, जो ऑस्पिशियस टाइम हो। इसीलिए जो मैंने यहाँ वेदांग ज्योतिष का ऊपर ये मंत्र लिया है, जो कि ऋग ज्योतिष और यजुष ज्योतिष से लिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन स्लाइड में, कि इसका अर्थ क्या है, जो काल विधान शास्त्र को जानने वाला है वही यज्ञ का असली ज्ञाता कहलाता है। अर्थात जो यज्ञ को करने वाला वही उत्तम व्यक्ति माना जाएगा जो काल के अकॉर्डिंग यज्ञ को कर रहा है। तो इसलिए हमारे जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं उसमें जितना भी यज्ञ से रिलेटेड डेटा हमें मिलता है, आप देखेंगे उसके आसपास कहीं ना कहीं काल की बात तो हो ही रही है। लेकिन अभी काल क्या है, मैं बात कर रही हूँ बिल्कुल शतपथ ब्राह्मण के काल के अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ कि हम वहां उस समय बैठे हैं, तो काल को जानेंगे कैसे? तो उसको जानने के लिए मैं समझती हूँ जो रहा होगा कि हमारे सामने कुछ ऑब्जर्वेशंस हुई होंगी, जो हमारे ऋषि होंगे वो ऑब्जर्व कर रहे होंगे, स्काई वॉचिंग कर रहे होंगे, वो मूवमेंट ऑफ जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनको देख रहे होंगे, ज्यादा और कुछ नहीं तो कम से कम जो उनके सामने मुख्य रूप से आदित्य जो सूर्य भगवान हैं उनको ही देख रहे होंगे आकाश में, स्काई में। एंड बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द सन जो डेली वो देख रहे होंगे, सनराइज टू सनसेट, सनसेट टू सनराइज अगेन, दिस इज हाउ दे कम टू नो कि नहीं कुछ टाइम बदल रहा है, सुबह से रात और रात से सुबह हो रही है, और इसी तरह करते करते वो काल गणना की और आगे बढ़े होंगे, ऐसा मैं मानती। और इसीलिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं संवत्सर की। अब हम संवत्सर की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एज पर शतपथ ब्राह्मण द टेक्स्ट आई एम डीलिंग हियर इज टॉक्स अबाउट द बिगेस्ट यूनिट ऑफ टाइम फॉर इट इज संवत्सर। संवत्सर ही उसके लिए सबसे बड़ा टाइम यूनिट है। दो हमारे पास लेटर टेक्स्ट में बहुत दूर तक की बात, बहुत आगे तक के बात की गई है काल गणना में, लेकिन शतपथ ब्राह्मण में संवत्सर ही सबसे बड़ा बिगेस्ट यूनिट है टाइम का। और इसी के लिए यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण ने स्वयं आदित्य को ही संवत्सर कहा है। सह यह स संवत्सरा सौ सह आदित्य, वह जो आदित्य है वही संवत्सर है। और साथ ही कह रहा है तस्य एतस्य संवत्सरस्य तत् एतत् तेजो यह एषः तप्ति, अर्थात ये जो तपता है, ये जो हमारे सामने तप रहा है, उसकी तपस को वो महसूस कर रहे हैं, ऐसा जो है आदित्य वही संवत्सर है। तो काल को वो कुछ और नहीं स्वयं सूर्य ही मान रहे हैं, और इसी को बिगेस्ट यूनिट से उन्होंने डिपिक्ट किया है। सो दिस इज जस्ट अ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द संवत्सर। नाउ अगर हम बात करें कि संवत्सर का, जैसा कि अभी आदित्य जी ने भी पूछा भी था कि संवत्सर से आप क्या समझते हैं, तो संवत्सर को अगर आप ध्यान से देखें इसमें वस धातु आया है, और वस धातु इज नथिंग बट टू ड्वेल, रहने के अर्थ में वस धातु मिलता है। और उसी के लिए यहाँ कहा भी गया है अकॉर्डिंग टू वन डेरिवेशन ऑफ संवत्सर इज नथिंग बट अ पीरियड वेयर सीजन्स ड्वेल,
और अ साइकिल ऑफ सीजन्स। ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है, उनकी ग्रंथ से लिया गया है, और आयन उनका बुक है, बहुत पॉपुलर है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब, एस्ट्रोनॉमिकल डेटा के लिए। लेकिन अब क्यों इसके बारे में बात की गई, इसको ध्यान से देखें, इसको सोचना होगा। सीजन्स कहाँ से आ गए? हम तो संवत्सर की बात कर रहे थे और अभी तक हमने संवत्सर भी क्लियर नहीं किया, हम सीधा सीजन्स पे आ गए। एक्चुअली क्या है, अगर आप देखिए जो मैंने बात कही कि हम जब वो टाइम को देख रहे थे, यज्ञ के अकॉर्डिंग यज्ञ कर रहे हैं और टाइम को देख रहे हैं, तो वो देख रहे थे, वो जान रहे थे, महसूस कर रहे थे व्हाट, कि आज ग्रीष्म, उनको गर्मी लग रही है, थोड़े टाइम बाद उनको ठंड लगने लगी, थोड़े टाइम बाद बीच में बारिश आ रही है, थोड़ा मौसम और क्लियर हो रहा है। तो इस तरह से मौसम धीरे धीरे सीजन्स बदल रहे थे। और जिस तरह से, जिस परिस्थिति और अनुभूति की, जिस द फीलिंग ही द पर्सन द ऋषि हैज हैविंग few months ago, and suddenly वो पूरा टाइम होने के बाद वो फिर से सेम फीलिंग आई। दिस इज हाउ उनको पता चला कि नहीं, ये एक टाइम पीरियड है जो यहाँ से शुरू हुआ था और घूम के फिर वैसे ही आ गया। और इसी में उन्होंने जो 6 ऋतुएं हमारे यहाँ, अभी आप आगे देखेंगे इन माय सब्सिक्वेंट लेक्चर्स, जिसके अंदर आई विल टॉक अबाउट वेरियस सीजन्स जो कि हमारे भारतीय संस्कृति में, इंडियन कल्चर में मिलते हैं। एंड उन सीजन्स को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि भारत में तो पहले से ही 6 ऋतुएं हैं और आज भी हैं। तो वो 6 ऋतुओं का अनुभूति जब ऋषि को हो रही थी, तो उन्होंने एक कोई अपना, जैसे हम आज भी अपना स्टार्टिंग पॉइंट एक बना लेते हैं, और उसी पे जब हम घूम कर दोबारा से आते हैं तो हमारे लिए वो, हम उसे वन सर्कल कंप्लीट मानते हैं। दिस इज हाउ, जो मैं समझती हूँ कि ये जो जिसमें सारे सीजन रह रहे हैं, वही एक संवत्सर है, वही एक काल का सबसे बड़ा यूनिट माना है। और आई होप इट इज क्वाइट क्लियर, बिकॉज वी ऑल नो अबाउट एन ईयर, सो अबाउट अ ईयर, सो इट इज वेरी मच अंडरस्टैंडिंग कि किस तरह से सीजन्स को लिया। और इसी को शतपथ ब्राह्मण में कहा गया, संवसंती ऋतुवः यत्र, जहां ऋतुएं रहती हैं वही संवत्सर है। अब संवत्सर के लिए अलग अलग वर्ड्स हमें मिलते हैं यहाँ पर, सिर्फ संवत्सर ही नहीं, देर आर मेनी अदर वर्ड्स दैट डिपिक्ट्स दिस पर्टिकुलर टाइम, जिसके अंदर सारे ऋतुएं, सारे सीजन्स आ जाते हैं, दैट कवर्स ऑल अदर सीजन, ऑल दी सीजन्स वी हैव। उसके लिए वर्ड्स हैं वर्ष, शरद, हेमंत, वत्सर, संवत्सर, अब, ऐसे वर्ड्स हमें मिलते हैं। और ये जो वर्ड्स हैं, इनके कुछ एग्जाम्पल, आई एम गिविंग फ्यू एग्जाम्पल्स हियर from the various sources of the black Krishna Yajurveda only, or even the white Yajurveda only, like Samvatsaro va Abdah, ये कपिस्टल कट संहिता का है। इसमें जो अब्द वर्ड है वही एक साल का द्योतक है, संवत्सर का द्योतक है। शतम जीवेम शरदः, ये तैतृय ब्राह्मण में मिलता है। और ये बड़ा बहुत ही इसमें यहाँ पर आप कहेंगे कि इसमें कौन सा वर्ड है, इसमें शरद वर्ड है, जो हमारा 1 ईयर का को डिपेक्ट करता है। देन वी हैव जो वाजसनेयी संहिता में है और जो बाद में आपको ईशावास्य उपनिषद में भी मिलता है, कुर्वन एव ही इह कर्माणि जिजीविषे शतम समाह। इसमें क्या वर्ड है, इसमें समाह शब्द जो है, दैट इज द वर्ड दैट डिपिक्ट्स द टाइम यूनिट अकॉर्डिंगली एज पर ईयर। दैट इज, जो यहाँ पर समाह शब्द है वही ईयर को डिफाइन करता है। सो दिस इज हाउ वी कैन से कि ये इस तरह से डिफरेंट वर्ड्स जो थे वर पॉपुलर एज अ ईयर टू डिपिक्ट ईयर in during the Vedic era, and that too in the Yajurvedic era. Now, अगर आप इसका रिलेशन देखें आज के हिसाब से, अब्द शब्द, अगर आपको याद होगा, आज भी हम सेंचुरी के लिए वर्ड यूज करते हैं शताब्दी, 100 years, तो उसके लिए हम अब्द शब्द का ही प्रयोग करते हैं। शताब्दी इज वेरी कॉमनली यूज्ड बाय ऑल ऑफ अस। देन जीवेम शरद शतम, ये तो एक वैदिक मंत्र है, वैदिक आशीर्वाद है, जो कि आज जितने भी हमारे संस्कार जो होते हैं, जैसे चाहे विवाह संस्कार हो, चाहे किसी बच्चे का बर्थडे हो, कुछ भी हो, तो उनको इसी तरह से हम आशीर्वाद, आशीर्वचन के रूप में बोलते हैं। इट इज लाइक अ ब्लेसिंग while giving a wish to someone who is having his birthday or birth date, जो तो हम बोलते हैं कि तुम 100 शरद जियो। अब यहाँ देखिए इसके अंदर कितना अच्छे तरह से बताया गया। शरद सबको पता है एक सीजन का नाम है, और जो शरद ऋतु है, जब वो एक बारी से दोबारा घूम के आया तो उसको वो कैलकुलेट कर रहा है कि 100 शरद जियो, तो शरद ऋतु को इस तरह से बताया गया। तो यहाँ पर ऋतु के नाम से भी संवत्सर का ही बात बताया गया है, क्योंकि शरद के बाद शरद तो नहीं आ रहा, ये तो क्लियर है, शरद को आने के लिए पूरा 1 साल का चक्कर लगेगा ही लगेगा।
तो इस तरह से संवत्सर का यहाँ पर ज्ञान हो रहा है। और समा शब्द तो मैंने बताया ही, यहाँ पर भी शतम समा की बात हो रही है, 100 वर्ष जियो, कर्मों को करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा रखो। तो ये जो बात है इस तरह से यहाँ यजुर्वेदिक ग्रंथों में हमें पता लगती है। और ये संवत्सर के डिफरेंट नेम्स हैं जो धीरे धीरे हमें वैदिक टेक्स्ट में मिलते हैं। इधर उधर मतलब वी कैन से दैट दिस ऑल इंफॉर्मेशन इज स्कैटर्ड इन थ्रू आउट द यजुर्वेद, जिसको हमने यहाँ कलेक्ट किया जस्ट टू एक्सप्लेन व्हाट इज संवत्सर इज ऑल अबाउट। नाउ as far as Shatpat Brahman is concerned, Shatpat Brahman gives the etymology of Samvatsar as Sarvatsar. सर्वत्सर का मतलब है जो सब कुछ चुरा लेता है, जो छल से संसार की आयु को चुरा लेता है। इसीलिए शतपथ ब्राह्मण में संवत्सर का एक अर्थ आयु भी लिया गया। एंड दिस इज, और इवन वी ऑल्सो फील, जब हम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करने पे हमें कहीं ना कहीं खुशी भी हो रही होती है कि हमने अपना एक साल जो पिछला या उससे पहले के जितने भी साल बिताए वो बहुत अच्छे बिताए और आगे हम और अच्छा बिताए। एक तरह से हमारी आयु घट भी रही है, लेकिन हमें ये इस बात की संतुष्टि भी रहती है कि हम अपना आगे आने वाला जीवन अच्छे से। तो इस तरह से संवत्सर को आयु से जोड़ने का कॉन्सेप्ट भी हमें शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, विच इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट इवन टुडे वी आर फीलिंग द सेम थिंग कि बाय ईयर वी आर गेटिंग ओल्डर। सो अगर हम तैत्तिरीय आरण्यक की बात करें, तैत्तिरीय आरण्यक अगेन यजुर्वेदीय आरण्यक है जो कि तैत्तिरीय संहिता, तैत्तिरीय स्कूल ऑफ यजुर्वेद से मिलता है। उसमें क्लियरली कहा गया है कालः संवत्सरम श्रुता, जितने भी तरह के काल हैं वो सब संवत्सर पर ही आश्रित है। तो अब यहाँ पर बात आती है कितने तरह के काल, अभी तक तो हम सिर्फ संवत्सर की बात कर रहे थे, देन फ्रॉम वेयर ऑल दिस real other time units came from। संवत्सर तो कुल मिला के है, टोटल है, इट इज अ कंप्लीट यूनिट, बट उसके अंदर भी बहुत सारे टाइम यूनिट्स हैं जिसको कि हम लेटर वैदिक टेक्स्ट, लेटर एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट या एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट में देख सकते हैं। जैसे कि बृहद संहिता बहुत पॉपुलर है, जो कि संहिता ग्रंथों के अंतर्गत आता है ज्योतिष के, और इसमें बताया गया युग, वर्ष, अयन, ऋतु, मास, पक्ष, अहोरात्र, मुहूर्त, नाड़ी, प्राण, त्रुटि, ये सब अवयव हैं। अवयव मीन्स दीज आर दी जो सब यूनिट्स ऑफ टाइम है, और ये सब कलेक्टिवली मिलके पूरा एक टाइम का हमारे सामने निकल के आता है। लेकिन अगर हम इसे शतपथ ब्राह्मण के हिसाब से या ब्राह्मण ग्रंथों के हिसाब से देखें तो हमारे पास आगे के in my subsequent lectures I will talk about various time units. So in that I'll discuss about Shan, Nimesh, Kashta, then Kala, then Muhurt, then Ahoratra, Ardhamas, then Mas, and then Ritu, Ayan, Samvatsar, and then Yug is there in the Vedanta Jyotish. So this is how इस तरह से पूरा का पूरा एक डिफाइन किया गया। लेकिन अगर हम आगे के ज्योतिष के ग्रंथों में देखते हैं तो हम प्रलय, महाप्रलय तक भी पहुंच जाते हैं, लेकिन संवत्सर ही बिगेस्ट यूनिट शतपथ ब्राह्मण के अकॉर्डिंग है। और तैत्तिरीय ब्राह्मण की अगर हम बात करें, हम बात शतपथ ब्राह्मण की कर रहे हैं लेकिन हम उसको रिलेट कर रहे हैं दूसरे यजुर्वेदीय ग्रंथों से भी, क्योंकि हमें जानना जरूरी होगा कि व्हाट शतपथ ब्राह्मण सेज इन अकॉर्डेंस विद दी इन रिलेशन टू दी अदर यजुर्वेदीय बुक्स, अदर स्कूल्स ऑफ यजुर्वेद। सो तैत्तिरीय ब्राह्मण में अगेन तैत्तिरीय स्कूल से इट इज रिलेटेड। इट सेज आदित्य गमनावृत्य ही संवत्सरो निष्पाद्यते। जो संवत्सर है वो कैसे बनता है, संवत्सर कैसे पूरा होता है, आदित्य के गमन मार्ग से ही। आदित्य का जो गमन मार्ग है, जब वो आदित्य अपने मार्ग को कंप्लीट करता है उस तरह से ही संवत्सर पूरा होता है, उससे ही संवत्सर पूरा होता है। तो दिस इज हाउ वी कैन से कि हाउ सन एंड संवत्सर, और यू कैन से ईयर, ये सब आपस में कैसे इंटर रिलेटेड है, और कैसे हमने सूर्य को ही आधार बनाकर अपना सारा का सारा जो हमारे जो ब्राह्मणिकल जो ऋषि थे उन्होंने किस तरह से सूर्य के आधार पर ही समस्त काल चिंतन को किया है, और जिससे आज तक हम लाभान्वित हो रहे हैं, और हमारे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल ग्रंथ लिखे गए हैं, और आज भी हम उस काल गणना को आगे लेके चल रहे हैं। थोड़ा सा और डिटेल में जाते हुए, अब जो ये संवत्सर की बात हमने की, ये आपने जितने भी यजुर्वेदीय हम टेक्स्ट देखते हैं जो कि आप स्क्रीन पे इस समय देख भी रहे हैं, काटक संहिता, मैत्रायणी संहिता, तैत्तिरीय संहिता, वाजस्नेयी संहिता, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, तैत्तिरीय आरण्यक, all these schools of all these books of Yajurved,
टॉक्स अबाउट संवत्सर, लेकिन अभी भी संवत्सर का हमें पूरा कितना उसमें टाइम है ये तो पता चल गया कि सूर्य का गमन मार्ग ही संवत्सर है, वो समझ आ गया। लेकिन उसको कहने के लिए कुछ शब्द तो पहले दिए गए जो मैंने अभी बताए थे, वर्ष वगैरह, जैसा कि वर्ष शब्द जो है तैत्तिरीय संहिता में वार्षिको शब्द मिलता है और आज भी हम वर्ष शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो मिलते थे जिसके कारण संवत्सर के बारे में बात करते थे वो शब्द था वो नाम थे संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, अनुवत्सर, उद्वत्सर, इद्वत्सर, इदुवत्सर। इस तरह से बहुत तरह से संवत्सर को कहा गया है इन वैदिक ग्रंथों में। जैसा कि आप देख रहे होंगे मैत्रायणी संहिता में आपके सामने है यहाँ पर मैत्रायणी संहिता और शतपथ ब्राह्मण को मैंने कोट किया है, जिसमें संवत्सरो अस्सी, परिवत्सरो अस्सी, इदावत्सरो अस्सी, उद्वत्सरो अस्सी, वत्सरो अस्सी, इस तरह से करके पूरे पूरे नाम की लिस्ट मिलती है। एंड देयर आर मेनी लॉट्स ऑफ रेफरेंसेस व्हिच वी फाउंड इन दीस बुक्स डिपिक्टिंग द वेरियस नेम्स ऑफ द संवत्सर ओनली। And this is how we can say our text was very much rich. It was not, it is rich. I must say it is rich. It is rich even in the present era. लेकिन जो हमने ये सब नॉलेज गेन की इन द एरा ऑफ शतपथ ब्राह्मण और द वेरियस स्कूल्स ऑफ यजुर्वेद, उसका बाद में क्या यूज हुआ अगर हम उसको समझें तो हम बाद में वेदांग ज्योतिष से जुड़ते हैं। वेदांग ज्योतिष में ये जो 5 नाम हमें मुख्य रूप से मिलते हैं, संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, अनुवत्सर, इद्वत्सर, ये सबको कुल मिला के इन टोटलिटी वेदांग ज्योतिष सेज इट इज अ पंच संवत्सरात्मक युग। युग का अर्थ है जोड़ना, और जहां 5 साल हैं उन 5 सालों को एक साथ जब जोड़ के कोई काल गणना हमारे सामने आती है तो उसे हम पंच संवत्सरात्मक युग कहा जाता है। अब देखिए अगर हम वेदांग ज्योतिष की बात करें, जो कि हमने अभी बात भी की है इस बात को कि वेदांग हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड दी वेदास, ये हम बात कर चुके हैं। तो वेदांग ज्योतिष तक पहुंचे हैं हम, लेकिन हमारे पास ये नेम्स आए कहाँ से? हमारे पास ये नेम आए हैं शतपथ ब्राह्मण से, या उससे भी पहले के जो हमारे पास यजुर्वेद की संहिता ग्रंथ थे। मान लीजिए हमारे पास ये नाम नहीं होते, इस तरह की काल गणना को ना सोचा गया होता, तो जो युग कल्पना है वही हमारे समक्ष नहीं होती। तो दिस इज हाउ all these names are very much important and how they differ from each other, ये भी कहीं ना कहीं इन ग्रंथों में scattered information के रूप में मिलता है। Now, lastly, I just want to say कि जब हम वेदांग ज्योतिष पे हम वैदिक ग्रंथों से, वैदिक संहिताओं से, ब्राह्मणों से होते हुए वेदांग ज्योतिष तक पहुंच गए, लेकिन वेदांग ज्योतिष की जो ये गणना है, जो ये हमें मिलती है रचना, इसको हम जब देखते हैं उत्तर वेदांग काल, उत्तर वेदांग काल कहने से मतलब है मेरा यहाँ पर जैसे कि सूर्य सिद्धांत या नारद संहिता, ऐसे और सारे संहिता ग्रंथ जो ज्योतिष के हैं, उसमें भी क्या इसी तरह से संवत्सर को डिपिक्ट किया गया है? तो हम कहेंगे नहीं, उसको और ज्यादा कैटेगराइज कर दिया गया। बात वही है, काल गणना वही है, लेकिन उसको आगे उन्होंने और फैला दिया है। किस रूप में उन्होंने फैलाया है? इस रूप में, जैसे कि नक्षत्र वर्ष कहा है, जिसे आप साइडेरियल ईयर के नाम से जान सकते हैं। सावन वर्ष कहा है सिविल ईयर के रूप में, चांद्र वर्ष कहा है ल्यूनर ईयर के रूप में, एंड सौर वर्ष का है जिसे हम ट्रॉपिकल एंड सोलर ईयर इन आवर लैंग्वेज कहते हैं, इन सिंपल लैंग्वेज। अगर हम इसको भी अगर समझना चाहें तो बहुत ही सिंपल है समझना। हम स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से नक्षत्र वर्ष से। एवरीबडी नो दैट, और हम आगे बात भी करेंगे इसके बारे में, that we have 27 constellations and these constellations जो हैं ये अपनी जगह पे स्थिर हैं। पृथ्वी पे भी हम अपने आप को स्थिर माने, हमारे लिए कौन घूम रहा है? हमारे लिए सूर्य घूम रहा है। तो सूर्य एक नक्षत्र को 13 डिग्री 20 मिनट में जाके अपना भोगता है, मतलब कि वहां तक पहुंचता है। तो जब सूर्य, when sun completes its rotation of whole 27 constellations, तो दिस इज हाउ उसको ये करने में ही पूरा 1 साल लग जाता है, और इसी को ही हम साइडेरियल ईयर कहते हैं। जब सारे के सारे कॉन्स्टेलेशंस को सूर्य कवर अप कर लेता है, सन कवर अप कर लेता है। देन इन वेरी सिंपल लैंग्वेज आई एम एक्सप्लेनिंग दिस। देन सावन ईयर की यदि हम बात करें, सावन वर्ष की बात करें, सावन वर्ष कुछ और नहीं, एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय का टाइम, दैट इज फ्रॉम वन सनराइज टू अनदर सनराइज, जो टाइम है दैट इज 1 सावन दिन। ऐसे 30 दिनों का सावन मास होता है, और ऐसे 12 सावन मासों का एक सावन वर्ष होता है, जिसे हम सिविल ईयर कहते हैं। अगर आप सिविल ईयर को वैसे चेक करेंगे नेट पे तो यू विल फाइंड कि जो हम आजकल फॉलो करते हैं, लाइक फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, ऐसा आपको डेफिनेशन मिलेगा।
मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं चांद्रवर्ष की। अब चांद्रवर्ष कहाँ से आया? चांद्रवर्ष जिस तरह सन सारे कॉन्स्टलेशंस को कवर अप करता है, हमारे लिए मून भी उतना इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। जो मून है, जब वो 27 कॉन्स्टलेशंस को कवर अप करता है तो उसको हम कहते हैं, उससे जो ईयर बनता है उसे बोलते हैं चांद्रवर्ष। तो ये जो मून है वो कब करता है? चंद्रमा की तिथियां डेली बदलती हैं अकॉर्डिंग टू हिज फेसेस, तो वो फेसेस एक महीने में अपने सारे फेजेस कवर अप कर लेते हैं, हम सभी मानते हैं इस बात को। तो वो जो फेजेस के हिसाब से एक महीना हुआ, दैट इज अ चांद्र मास। और इस तरह से 12 जो मास हुए वो हुए चांद्र वर्ष। तो ये आ गया ल्यूनर ईयर। एंड नाउ द वेरी सिंपल वन, दैट इज द सौर वर्ष। अभी हमने जनवरी में संक्रांति मनाई है एज पर इंडियन कल्चर। सो सूर्य का जो संक्रांति होती है, एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति, और फिर इस तरह से करते करते 12 संक्रांतियां जो वो कवर अप करता है, और उससे जो रिलेटेड बनता है दैट इज अ सौर वर्ष, जिसे हम ट्रॉपिकल ईयर कहते हैं। एंड नाउ इनके अंदर और क्या सिमिलैरिटी है, डेज की क्या सिमिलैरिटी है, संवत्सर में कितने दिन होते हैं, कैसे हम इनको और जान सकते हैं, और कैसे संवत्सर के अंदर जिस तरह हमने ऋतुओं का वास बताया है, तो हम उसको दूसरे टाइम यूनिट्स के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे वो रिचुअल्स से इंटर रिलेटेड है। ऑल दिस आई डिस्कस इन माय सब्सिक्वेंट लेक्चर्स। एंड थैंक यू। Yeah, thank you, Aparna ji, Dr. Aparna. You explained a lot about Samvatsar. And so when we talk about the calendar system, Western calendar system, so where does the Western calendar system fit into this? As I said in my talk only, that like it's I found it's in the way of a civil year, like 1st January to 31st December. And but as far as Indian culture, hope you all know that we follow lunar months. So which one is more accurate, the lunar or the solar? See, I think that for certain rituals, people prefer lunar months only, and but we follow both. We follow both. So when we talk about the Western Gregorian calendar, we have done a whole show on Western Gregorian calendar in this channel, and we have proved that it is whimsically created based on the convenience of some people. So mostly political, and also during the Yudhishthir times or the Mahabharata times, just 6,000, 7,000, 8,000, whatever the time period it is back. And Nilesh Oak and other people can say better on these timings. But according to those analysis, the calendar calculation date, today it is GMT, at that time it was Ujjain, that line. So how much accuracy does that line bring to the calendar system as compared to the GMT today? That is a question, as you already said, that this is a topic or related to Mr. Nilesh Oakji, and he's my colleague only, and I'm very much happy if he deliver his views on this particular thing. But as far as you are saying, like I'm with your word from like Ujjain you are quoting, so I'm remembering Vikramaditya ji and uske unka jo especially Vikramli Samvat we are following these days, even in Indian culture, Indian calendars. So this in this way I can say that yes, it is accurate. It is more accurate. People are following it even now. No, अभी हिंदी भाषियों के लिए ये शो हिंदी इंग्लिश दोनों में है. दिस लास्ट क्वेश्चन वाज फॉर द अमेरिकन ऑडियंस. अभी मैं हिंदी पूछूंगा. तो अगर मैं आपके हिसाब से पूछूं, नीलेश ओक तो मेरे अच्छे मित्र हैं, उनके हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से अगर दुनिया में वापस उज्जैन वाली रेखा को हम मुख्य धारा बनाए कैलकुलेट करने के लिए, वो जीएमटी से बेटर है कि इंफीरियर है? ये क्वेश्चन ही पॉलिटिकली है. क्योंकि if I say GMT is better, then people from London or Greenwich time, they will be happy. If I say now my Ujjain is better, so people from India will love it definitely. So this question is quite political. एक्चुअली जनरली देखा जाए तो एनी टाइम कैलकुलेशन अगर आप इक्वेटर के बेसिस पे करें, and where the maximum land mass is, then it is more
practical क्योंकि majority of the population lives on जम्बू द्वीप. अभी से नहीं है, पहले से ही है. Because अभी से नहीं, अगर एयर कंडीशनिंग हटा दिया जाए तो कोई लंदन में रहने वाला नहीं है. वैसे भी वहां के लोग भागते रहते हैं बिकॉज मोर मेंटल डिजीज आर देयर इन लंदन देन एनी अदर प्लेस. शायद लोगों को मालूम नहीं है कि मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन द वर्ल्ड आर इन यूके अकॉर्डिंग टू पॉपुलर ओपिनियन, नॉट जस्ट माइन ओपिनियन. एंड तो अगर देखा जाए तो मेंटली स्टेबल पीपल मैक्सिमम आर इन एशिया, स्पेशली इन इंडिया. इंडिया में मेंटल डिजीजेस का परसेंटेज थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू द वेस्ट. तो अगर वापस अभी इसी क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं कि अगर हम लोग वहां पे कैलकुलेट करते हैं, इट अफेक्ट्स द मैक्सिमम ग्रुप ऑफ पीपल. So again, it looks like a whimsically appointed line which is used for a global time calculation. So how many? Also, Aditya ji, I feel that major role again इसके अंदर, जैसे अभी मैं संवत्सर को आदित्य से रिलेट करती हूँ, and you're also आदित्य. So जैसे मैं रिलेट कर भी रही थी और ऐसा मैं क्या रिलेट कर रही थी, वैदिक ग्रंथ हमारे कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सूर्य का ही इसमें रोल है. जहां सूर्य की ज्यादा रोशनी रहेगी, जैसा अभी आप बात करते हैं, सूर्य का प्रकाश है, सूर्य की ऊर्जा है, एनर्जी है, और जो भी हमारे केमिकल सारा जुड़ा है, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस जो हो रही हैं बॉडी में, बायोलॉजिकली एवरीथिंग, वो उससे रिलेट कर रहा है. तो इसीलिए वो जो आप कह रहे हैं कि मेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ कम है और वहां ज्यादा है, जहां भी आप बात कर रहे हैं, तो उसका कारण यही है कहीं ना कहीं. वो टाइम को भी ठीक कर रहा है, हमारी बॉडी क्लॉक भी ठीक कर रहा है, एंड सेकेंडली वो हमारे जो दूसरी इश्यूज हैं उन सबको, तो सूर्य वाला ही पोजीशन जहां पर वो आ रहा है, जैसे आपने इक्वेटर की बात की, तो वो इसीलिए ज्यादा एक्यूरेट एंड ज्यादा ऑथेंटिक है. That's right. और अगर मैं अभी ग्लोबल मेंटल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो सबसे ज्यादा मेंटल इश्यूज आर दुनिया में है इंडिया, यूएसए में, ईरान में और न्यूजीलैंड में और नॉर्वे में. These have the maximum as a percentage of the population per 100,000. That was a report published in 2017. आप search कर सकते हैं लोग. And that was a report published by in 2019. Same report, similar report. तो ये is a globally known, and the healthiest people in the world mentally are in South America, in India, in Vietnam, Cambodia, Thailand. So यहाँ पे mental peace is very high. Chinese में again it starts reducing. The more the cold starts increasing, the mental status goes down, mental health goes down. So it is in USA also, the mentally the most healthy societies are in Florida, Southern California and California, जहाँ पे सूर्य ज़्यादा है. Southern Texas, ये US में है. और बाकी as you grow north, the mental health reduces. तो सूर्य का प्रभाव बहुत ज़्यादा है हमारे मन पे. जैसे हम गायत्री मंत्र भी करते हैं, सूर्य उपासना करते हैं. And if you look at South American cultures, हर जगह सूर्य की उपासना है, हर जगह. So I go to Mexico, Aztec है वहाँ पे, जहाँ पे चर्च ने डिस्ट्रॉय किया, बट एनीवे इट इज देयर. मेंटल, वी कैन चेक इट आउट. इट्स अ हेल्थ स्टैटिस्टिक्स. इसमें बुरा मानने की किसी को जरूरत नहीं है, एंड स्पेशली द वेस्टर्न ऑडियंस शुड नॉट फील बैड दैट द मेंटल हेल्थ स्टेज वेयर द सन इज देयर. वेरी क्लियर. And अदरवाइज the व्हाई? more you are closer to the nature, or especially to the sun, definitely you will be more healthy and peaceful. Yeah, like in many parts of the US, there's 6 months is cold, and you check the mental health of theirs and check the mental health of somebody living in the sun, you'll naturally find the difference. And so there's a joke when people tell me, why do Indians have come to California? I said, they didn't come here for sun, they come here for money. There's, they did not come here for sun. If it was sun, they would have never left India. And most of the Americans, when they grow old, they go to India. They retire in Rishikesh, they retire in Vrindavan. Many Americans are doing that gradually. I will not be surprised if Bill Gates' divorced wife ends up in Ayodhya sometime in future. So Nice thought. no, she will. She's always there. Right. Earlier, she was doing all the bad things, giving wrong vaccines to everybody else. Now she's actually getting into yoga and meditation now, hopefully. So that's the effect of India. Anyway, thank you, Aparna, for the wonderful show. And viewers, comment jarur kariyega and let us know your feedback. Namaste.
Thank you very much. Namaste.